देखा रहेगा कि ऐसे आयरन के बेंचेस होते हैं, हमारे घरों में आयरन के ग्रिल्स होते हैं, एंड so many different places you can see iron and iron materials. After a point of time, if the iron is left unattended or in the open without any paint or anything, it starts rusting. वो रस्ट होने लगता है इस तरीके से। ये देखो, पानी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप देखेंगे वो जो आयरन बेंच एकदम क्लीन एंड नीट था, वो कुछ दिनों बाद ऐसे रस्टेड अपने को दिखने लगता है, गंज लगा हुआ, जंग लगा हुआ दिखता है अपने को, राइट? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इट इज बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन अकर्स. So I don't know whether you guys are aware of it, but have you heard about oxidation and reduction before? आपने पहले कभी Yes, ऑक्सीडेशन sir. और रिडक्शन के बारे में सुना है? जी. So in simple terms, what we have learned in the lower standards, it is oxidation means addition of oxygen and reduction means removal of oxygen. ऐसे हमने देखा है, right? So यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है. So reactions where both are taking place will be called as redox reactions, where oxidation and reduction is going to take place simultaneously is called as a redox reaction. Now look at this. This rusting of iron is nothing but an electrochemical process in which electrons are transferred between iron and oxygen, and a redox reaction takes place. Now redox ये वर्ड कहां से मिला है मुझे? रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये रेड ऑक्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? रिडॉक्स ऐसे मिलेगा. ठीक है, अच्छा. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. सो द शॉर्ट फॉर्म यू कैन सी वो रेड और ऑक्स से करके हमको मिला है. ठीक है. Now let us see the classical concepts of redox reactions, or the classical concepts and the definitions of reduction and oxidation, जो हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं या फिर जो बेसिक टर्म्स में बात करते हैं. इसके बाद हम लोग एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे हमें पता चलेगा कि इस एक चीज को यूज करके हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों पता कर सकते हैं. So what is oxidation? Addition of oxygen or any electronegative element to a substance, or it is also called as removal of hydrogen or any electropositive element from a substance. So पहले तो सिंपल डेफिनेशन पे ध्यान दो बेटा. सिंपल डेफिनेशन क्या बोलती है? दैट ऑक्सीडेशन इज आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. मतलब किसी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ठीक है, किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे. उसी सेम चीज के उसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन निकल रहा है तब हम लोग उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. राइट गर्ल्स? Yes, sir. अच्छा. सो बच्चों, this addition of oxygen and addition and removal of hydrogen, this is something which you have learned in the lower standards. ये आपने lower standards में भी पढ़ा हुआ है. अब what is this alternative definition of इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होना? So what is a electronegative element? A element which accepts electron and has a negative charge on it. And what is electropositive element? A element which loses electrons and gains a positive charge on it. Right beta? Electronegative elements generally non-metals होते हैं और electropositive elements generally metals या hydrogen is an exception to this case. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसे डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है आपकी इससे, क्या बोलते हैं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस तरीके से. अब लास्ट शेल में से
आपको अगर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो व्हाट इज इजियर फॉर द एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू लूज इलेक्ट्रॉन? बिकॉज लास्ट शेल में एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट रूल के हिसाब से, राइट बेटा? ये हमने 10th में पढ़ा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी. So this if the number of electrons in the last shell beta, if it is if in the last shell, if it is less than 3, what will the atom do? It will lose electron or it will gain electron? Lose electrons. Lose it. It will lose electrons, and when it loses electrons, atom will acquire a positive charge, right? Yes. Acha. Such elements which lose electrons and become positive are called as electropositive elements. Okay. अब elements जिसके पास more than 4 electrons रहेगा last shell में, more than 4 electrons in the last shell, such elements will gain electrons or lose electrons? Gain करेंगे Gain sir. electrons. They will gain electrons. So once they gain electrons, what charge will be there on those atoms? Negative charge. That is why they are called as electronegative elements. They are called as electronegative elements. बेटा अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन को सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एंड अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके H प्लस आयन बना लेता है. हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके H प्लस आयन बना लेता है, राइट बेटा? Yes, sir. Yes. अच्छा. सो लुक एट द ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन. वो बोल रहा है या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन जैसा कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, तब तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन जैसा कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा, तब हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. बेटा समझ रहे हो? सर वापस से एक बार एक्सप्लेन करो. अच्छा. Hold on, I'll just think over this. Okay. आपको खाना बनाना है, ठीक है? आपको खाना बनाना है और खाना बनाने के लिए यू विल रिक्वायर ऑयल, और ऑयल घर में खत्म हो चुका है. तो आप दुकान पे जाओगे, आप उसको बोलोगे भैया मुझे धारा का ऑयल देना. धारा इज सम ऑयल ब्रांड, ठीक है? धारा का ऑयल देना. वो बोलेगा धारा का ऑयल नहीं है बट जेमिनी का ऑयल है. तो आपको अर्जेंट है, उस वक्त खाना बनाना है आपको, तो भले ही धारा नहीं है बट धारा जैसा कोई दूसरा ऑयल है जेमिनी का, तो आप वो ले लो. धारा ही चाहिए गाइस, गर्ल्स रादर. वो वो भी ले लेंगे सर. ले लेंगे, राइट? तो या तो मैं धारा लूंगा या फिर धारा जैसा कोई और. तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन जैसा कोई दूसरा सब्सटेंस. सो आइदर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और समवन लाइक ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. Yes, sir. समझे बेटा? हाँ सर. गर्ल्स, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बेटा? हाँ सर. अच्छा. And either removal of hydrogen or someone electropositive like hydrogen. ये लिख लो बेटा डेफिनेशन. लिख लिया? Yes, sir. No, sir. अच्छा. हो जाए तो बताना बेटा.
Done, guys? No, sir. अच्छा, हो गया सर. डन, ओके। अच्छा बेटा, ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या होगा? रिडक्शन। हमने ऑक्सीडेशन में क्या बोला था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा? वहां पे क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके बेटा, Yes, Yes, sir. sir. ये भी लिख लो। डन। No, sir. No, sir. Because reduction is opposite of oxidation. Oxidation. Hmm. हो जाए तो बताना बेटा, हो ठीक है? गया सर. अच्छा, removal of oxygen or electronegative element from a substance, or addition of hydrogen and electropositive element to a substance. So these are the classical concepts. ठीक है? तो रिडॉक्स रिएक्शन को अगर हम इलस्ट्रेट करेंगे तो इस तरीके से उनको समराइज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ये, मतलब किसी एटम के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस बेटा? Salt है sir. वेरी गुड, सॉल्ट है बेटा, ये कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। अब लेट अस सी ये कैसे होता है। नाउ सी दिस, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ये देखो बेटा, सोडियम प्लस क्लोरीन इज गिविंग मी सोडियम क्लोराइड, राइट? Yes, sir. बेटा सोडियम के अंदर कौन ऐड हो रहा है? क्लोरीन ऐड हो रहा है। Yes, sir. क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल है, राइट? Yes, sir. डेफिनेशन क्या बोलती है? आइदर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सोडियम में ऐड हुआ तो सोडियम का क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। गाइस Yes, sir. Yes, sir. इतने कम लोगों फिर भी तुम लोग बोल नहीं रहे हो। ऑल गर्ल्स, सब लड़कियां हैं ना आज लेक्चर में? बताओ फटाफट। बेटा सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ, सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ। सो एज पर दिस क्लासिकल डेफिनेशन सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। Oxidation. और अगर Oxidation. मैं उल्टे तरीके से देखूं तो क्लोरीन के अंदर सोडियम ऐड हुआ, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो Yes, एडिशन sir. ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। दोनों को मिला के क्या हुआ? रिडॉक्स। Redox. समझे बच्चे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लोरीन इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिया है तब भी हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। So oxidation and reduction are occurring simultaneously. That is why we are calling it as redox. Now see this. What is this beta? Combustion, burning, na? Burning is also a redox reaction. Combustion is also a redox reaction. Now let us take an example of
मीथेन का और कंबशन। मीथेन का कंबशन मतलब मीथेन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, देख करके मुझे बताइए। क्लासिकल डेफिनेशन, एरोस बने हुए हैं। आप मुझे बताइए मीथेन का क्या हुआ, आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का क्या हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ और क्यों? गायत्री। गायत्री। Yes, sir. हाँ बेटा, यहाँ पे मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? CH4 का कंपेयर करो, देखो ये एरो दिया है ना, CH4 से CO2 मिला, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। तो गायत्री इसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो ऑक्सीजन में ऐड हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया ऑक्सीजन में, तो इसका क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, दोनों एक ही रिएक्शन में हुआ। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स ऐसे रिएक्शन। एरोस बना के लिखना है बेटा, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। Methane is reacting with oxygen to give carbon dioxide and water. ठीक है? Carbon is oxidized because of removal of hydrogen, and simultaneously oxygen is reduced due to addition of hydrogen, है ना? जो Yes, sir. कार्बन में से हाइड्रोजन निकला वो ऑक्सीजन में ऐड हो गया, इसीलिए यहाँ पे मैं इसको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोल के रिडॉक्स बोल रहा हूँ। राइट बेटा? यस यस Yes, sir. एग्जाम्पल्स लिख रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, look at this. ये देखो, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड, इनके एग्जांपल्स देखो बेटा। कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विद कॉपर सल्फाइड टू गिव कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आप मुझे देख करके बता सकते हो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का Oxidation. ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया बेटा, सॉरी Copper- रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ है, कॉपर sir. ऑक्साइड में से ऑक्सीजन Reduction निकल गया, इसका रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे कॉपर सल्फाइड से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकल गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है, sir. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ। गाइस क्लासिकल डेफिनेशन लगाना है। ये देखो, electronegative element removed from copper oxide, oxygen, and over here electropositive element is removed, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। यस यस सर। ठीक है, लेट अस सी सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड देयर मीनिंग्स। यहाँ देखो बेटा, 2Mg plus O2 is giving me MgO, तो Mg का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। Oxidation. Why? Because of addition of oxygen. Now over see, Mg plus Cl2 is giving me MgCl2. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी मुझे बताना है किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। तो ऑक्सीजन जैसा कौन है बेटा? क्लोरीन है, तो क्लोरीन is being added to magnesium, electronegative element being added to magnesium, again this is oxidation. Addition of an electronegative element to a substance is oxidation. यहाँ देखो बेटा, removal of hydrogen, CH4 में से हाइड्रोजन निकल गया, तो व्हाट इज दिस? इसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट किया,
So I get potassium ferrocyanide, ferric cyanide and potassium hydroxide. Removal of electropositive element from a substance. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां से निकला बेटा? इसमें से, इसमें K4 था, यहाँ पे K3 बचा, एक K निकल गया, राइट? Yes, sir. So it's oxidation. एक K निकल गया, K इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। गाइस अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से लिख लो, एग्जांपल लिखो, उसके नीचे लिखो उसका क्यों ऑक्सीडेशन हुआ है। पहले वाले में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे वाले में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और लास्ट वाले में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। डन गाइस? No, sir. बेटा उन लोग को समझ रहे हैं ना? ये हम लोग सिर्फ हाँ, सर। रिविजन कर रहे हैं बचपन का। श्रद्धा, सृष्टि, गायत्री, कृष्णा, महेंद्र, Yes, sir. दिव्या, Yes, sir. अच्छा सर, हाँ बेटा, सर फोर्थ एग्जांपल में एग्जैक्टली क्या हुआ वो नहीं समझा मेरे को। फोर्थ एग्जांपल में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे ना बेटा, K4 FeCN6 है, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो K3 FeCN6 है। एक पोटेशियम निकल गया ना उसमें से बेटा। यस सर। K4 और K3 को कंपेयर करो, उसमें K4 और K3 है, तो एक पोटेशियम निकल गया, एक K निकल गया। K पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट? यस हाँ हाँ सर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज ऑक्सीडेशन, है ना बेटा? हाँ हाँ समझा। अच्छा, लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। अच्छा, महेंद्र तुम लड़का हो कि लड़की हो? लड़का हूँ सर। अच्छा बेटा, ओके। नहीं, सारी लड़कियां ज्वाइन की थी ना आज, तो मैं सबको लड़कियां लड़कियां कर रहा था। कृष्णा तुम लड़की हो कि लड़का हो बेटा? सर मैं लड़की हूँ। ओके बेटा, तो सिर्फ एक ही लड़का है अपने पास, महेंद्र। ओके महेंद्र, तुम गोपियों के बीच में फंस गए। डन? डन सर। Done, sir. ओके, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। रिडक्शन रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड इट गेट्स रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। ये कौन सा एग्जांपल है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन हुआ। हाँ, यहाँ देखो, क्लोराइड में क्लोरीन बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज बीइंग रिमूव्ड, व्हिच इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? क्लोरीन। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। look at this equation, look at this one now. अपना CH2 is what बेटा? इथीन। इथीन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट बेटा? रिडक्शन, राइट? यस। अच्छा, HgCl2 देखो प्लस टिन क्लोराइड इज गिविंग मी Hg2Cl2 प्लस टैनस क्लोराइड। तो HgCl2 के अंदर Hg2Cl2 हो गया, मतलब मर्क्यूरी ऐड हुआ। मर्क्यूरी इज अ मेटल, मर्क्यूरी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज गोइंग टू अगेन बी रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो गया इसमें, ये बेटा।
ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स थे पहले, ये रिडक्शन के एग्जांपल्स हैं। हाँ सर। यस समझा बच्चों? ये एग्जांपल्स लिख लिए? लिख लो सर। कैन वी गो अहेड? नो सर। यस सर। यस और नो? नो सर। अच्छा लिख लो बेटा, लिख लो। लिख लो बेटा। और सिर्फ रिएक्शन मत लिखना, उसके नीचे क्या रीजन है वो भी लिखना, आपको बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा बेटा। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है? क्लोरीन, वो ब्रैकेट में लिख लो। कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मर्क्यूरी ऐड हो रहा है, वो ब्रैकेट में लिख लो। आपको बाद में जब आप रिवाइज करोगे आपको आसान पड़ेगा बेटा। डन सर। डन बेटा। एच नाउ लुक एट दिस। अभी तक हम लोग ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। नाउ वी आर लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स में ना दो ही चीज हो सकती है बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा एटम के ऊपर, राइट बेटा? तो अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें, तो जो एटम, द स्पीशीज और द एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड, उसका बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन हुआ। और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हुआ, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना बेटा, उसका चार्ज रिड्यूस हो जाता है ना? यस सर। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका हुआ रिडक्शन। आए, ये देखो सोडियम Yes, क्लोरीन sir. का, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई। ठीक है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इज इन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ loss of electrons and gain of electrons. Simple. Yes, sir. Loss of electrons is results in two things: increase in positive charge or decrease in negative charge. एक ही बात है. And reduction is defined as gain of electrons. Classical concept में क्या बोलते हैं हम reduction को? Removal of oxygen or Addition of hydrogen. or elements similar to them. But electronic concept में it is okay guys, this concept is clear. Yes. Yes, sir. तो एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये देखो, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर कोई नेगेटिव आयन है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर अगर 2 माइनस था तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस, उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, राइट? Yes, sir. और अगर कोई नॉर्मल एटम है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अभी जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज या फिर इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
नॉर्मल एटम में इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर कोई पॉजिटिव आयन होगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ गेन इन इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. ये टेबल बना लिया? No. क्यों? Then guys, No, Answer. sir. Yes. Done, sir. then can be easily remembered by this oil rig वाला। क्या बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? ये देखो, oil rig. What is oil? Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. Oil oxidation, rig reduction. Oxidation is loss, reduction is gain of what beta? Of electrons. लड़कियों समझा क्या? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, sir. sir. अच्छा, लिख लिया ये? Then Done hey, sir. Utkarsh, No, I have sir. taught you this na beta. सर We have done this in the class ना Utkarsh? ऑफलाइन में हुआ है ये सब कुछ। हाँ, तो I am continuing this. You were not there in yesterday's lecture. ऑफलाइन नहीं आऊंगी मैं। अच्छा बेटा, ओके। Done, sir. Then Yes, sir. ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, आपने देखा वो? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ और क्लोरीन का क्या हुआ? सर नहीं देखा वो। हाय हाय, क्यों नहीं देखा? ये देखो, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, देखना। गया, देखा अभी? उसको खींच लिया।
सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया ना, चार्ज के वजह से ना सर। अरे उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया ना बेटा, तो अब सोडियम पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन हाँ नेगेटिव हो सर। गया। तो सोडियम का क्या हुआ और क्लोरीन का क्या हुआ? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज उसके पास गया इसलिए वो हुआ। सोडियम ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का रिडक्शन। Exactly. In terms of loss of electrons is oxidation, is reduction. तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, राइट? यस यस सर। सर। Sodium is losing electron. ये देखो, इस तरह से हम रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन लिख के लो बेटा, ऐसा ऐसा बना लो। जितना आप नोट्स प्रॉपरली लिखेंगे ना बेटा, उतना आपको बाद में रिवीजन के टाइम के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। डन? यस सर। नो सर। अच्छा, हो गया सर। हो गया? यस सर। अच्छा, ये देखो, सो सोडियम is losing electron and forming Na plus ion. Chlorine is accepting electron and forming chloride ion. ठीक है बेटा, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूं, तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट साइड में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं यहाँ पे लेके गया तो -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल ना बेटा। हाँ यस सर। सर। ठीक है, सो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। ये देखो, ये भी लिख लो बेटा अच्छे से। देन डन सर। डन सर। अच्छा, so in a redox reaction, substance which is losing electron, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बट उसका जो इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया वो उसने किसको दिया? क्लोरीन को दिया। तो उसने क्लोरीन का क्या कराया बेटा? रिडक्शन कराया। हाँ सर। सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया
तब उसका वो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सोडियम खुद तो ऑक्सीडाइज हुआ बट दूसरे को रिड्यूस कर दिया। अब उसने दूसरे का रिड्यूस किया, इसलिए वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब उसके थ्रू वो काम हुआ, राइट गाइस। Yes, sir. Yes, sir. एजेंट मतलब उसके थ्रू वो काम हुआ। सोडियम का खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ बट उसने दूसरे का रिडक्शन कर दिया, तो इसीलिए वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी क्लोरीन क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन का खुद का रिडक्शन हुआ बट उसने दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसने दूसरे को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन और दूसरे को ऑक्सीडाइज, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों? अगर नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी। हाँ बेटा, सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक घर खरीदना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली घर खरीद नहीं सकता, मुझे एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैंने जब घर खरीदा, एजेंट को क्या मिला, पैसा मिला, हाँ। ठीक है बेटा। तो मुझे घर खरीदवाने का काम किसने किया, एजेंट ने किया। उसको क्या मिला, पैसा, मुझे क्या मिला, घर, है ना बेटा। Yes, sir. अब देखो बेटा, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यस। ठीक है। वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो किसने एक्सेप्ट किया, क्लोरीन ने किया एक्सेप्ट। तो सोडियम के लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यस। क्लोरीन का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, मुझे घर किसकी वजह से मिला था, एजेंट की वजह से मिला था। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से मिला, सोडियम की वजह से मिला। तो सोडियम ने क्लोरीन का क्या किया, रिडक्शन किया, तो सोडियम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा Yes, sir. यस सर। Yes, पक्का, sir. हाँ सर। इतनी दिव्या समझ में आया बेटा, हाँ सर समझा। Yes, sir. ठीक है। तो उसकी वजह से क्लोरीन किसकी वजह से रिड्यूस हुआ, सोडियम की वजह से, तो सोडियम इसके लिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी सोडियम किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, क्लोरीन की वजह से, तो क्लोरीन क्या हो गया, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस। ये बेटा रिड्यूसिंग समझा एजेंट जो सर। होता है उसका हाँ खुद का सर, उसका समझा। खुद का सर। रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका खुद का रिडक्शन होता है, समझे। हाँ, sir. यस। अच्छा yeah, sorry, I got disconnected in between. Did you write this down beta? यस। Yes, sir. Okay. Reducing agent gets oxidized and oxidizing agent gets reduced, उल्टा। तो इसमें क्या होगा बेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड,
sodium acts as reducing agent by losing electrons, and chlorine will act as a oxidizing agent by accepting electrons. उस क्लोरीन ने सोडियम का ऑक्सीडेशन किया और सोडियम ने क्लोरीन का रिडक्शन किया। सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ और दूसरे को रिड्यूस किया, क्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ और दूसरे को ऑक्सीडाइज किया। समझ गए बेटा? हाँ। Yes, sir. अच्छा, can we move ahead? Yes, sir. No? लिख रहे हो क्या? Now look at this periodic table. Metals generally have tendency to lose electrons, right? And non-metals have a tendency to gain electrons. So metals, they will lose electrons. तो उनका क्या होगा बेटा? Oxidation. So how will they act? They will act as reducing agents. जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? Reducing agents, है ना? अभी अच्छा। देखा हमने। Yes. Girls, Yes, sir. Yes, sir. महेंद्र, ठीक है? सो मेटल्स, ये जो हाईलाइटेड है ना ब्लू में और येलो में, ऑल दीज आर मेटल्स बेटा. सो दे आर वेरी गुड इन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन्स दे देमसेल्व्स अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो उनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. तो व्हाट विल दे बी गुड एट? दे विल बी गुड एट रिड्यूसिंग. सो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नो की यस. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये देखो, जिंक रॉड को हम लोग कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालेंगे. जिंक रॉड, जिंक इन एक्वस कॉपर नाइट्रेट. थोड़ी देर बाद क्या होगा? जिंक के ऊपर एक रेडिश कोटिंग दिखेगा अपने को. जिंक रेडिश हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. और ये जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा, मतलब उसका जो कॉपर है वो सब जिंक के ऊपर चला जाएगा और सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस. कॉपर जो है वो उसमें चला गया. Cu+ में कलर होता है ब्लू. अब वो Cu+ ही अगर चला गया तो मेरा जिंक रॉड के ऊपर सब Cu+ चला जाएगा. तो अगर सोल्यूशन में से Cu+ चला गया तो वो कलरलेस हो जाएगा बेटा. Yes, sir. Sir. व्हाट इज द रिएक्शन ओवर हियर? जिंक रॉड को डिप किया कॉपर आयंस के सोल्यूशन में, हमको मिला क्या? जिंक का आयन सोल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर का जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बनके उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. अब आप इस रिएक्शन को देख के मुझे बता सकते हो किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ? Guys, are you there? Yes, sir. हाँ जी. Zn का ऑक्सीडेशन हुआ एंड Cu+ Zn का का ऑक्सीडेशन रिडक्शन. हुआ क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट? Yes. Yes. और Cu2+ ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और Cu बना दिया. ये बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव रिडक्शन इन चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, कॉपर का +2 से 0 हो गया तो मतलब कम हुआ, तो इसका क्या हो गया बेटा? इसका रिडक्शन हुआ. जिंक का Reduction. 0 है और पॉजिटिव चार्ज 2 हो गया, बढ़ गया चार्ज, तो क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया ना जिंक का. Yes, sir. Yes, sir.
है, समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, जिंक लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn2 प्लस आयन। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ एंड साइमल्टेनियसली Cu2 प्लस ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे वो गेन करके क्या हुआ बेटा? उसका रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट गॉट रिड्यूस्ड। अब हम लोग कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट में रखेंगे। ओके, दिस इज एक्चुअली आगे वाला पार्ट जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये दिस इज अबाउट electrochemical series. This is application of this. Let us first understand. Now we will study a new concept called as oxidation number. ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको चैप्टर के एंड में पढ़ूंगा बिकॉज वो एप्लीकेशन में आता है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी आप लोग समझ गए। ऑक्सीडेशन का अलग अलग डेफिनेशंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 5 डेफिनेशंस हमने अभी देखी बेटा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा? हमने ये 5 डेफिनेशन देखी ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of electronegative element, removal of hydrogen, removal of electropositive element and removal of electron. अरे रिडक्शन sir. की हमने कौन सी 5 डेफिनेशन देखी बेटा? रिडक्शन की रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ Addition हाइड्रोजन, of hydrogen. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ Addition. इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes, sir. Yes, Now sir. we will see what is this oxidation number concept. Hey beta, in simple terms, in very simple language, what is oxidation number? I'll tell you. Oxidation number एक simple चीज होती है. It is the charge that is present on a element in a compound. एक एलिमेंट के ऊपर, उस कंपाउंड में उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। मतलब अब ये एलिमेंट सिंगल है, जब ये एलिमेंट्स खुद से रहेंगे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों बेटा? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमने बचपन से पढ़ा है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. अब लेकिन जब ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, अब इनके ऊपर चार्ज आ गया बेटा। इसके Yes, ऊपर sir. पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों आयनिक बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बना लेंगे, NaCl, Yes, sir. है ना बेटा? उस NaCl में सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है? +1। और क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है बेटा? -1. -1. बस एलिमेंट के ऊपर कंपाउंड में जो चार्ज होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। सर मतलब जो कंपाउंड दिया रहेगा जिसके ऊपर उसका चार्ज दिया होगा, जो नंबर दिया होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। I'll tell you, there are certain rules. There will be rules to assign oxidation number. तो हमें कंपाउंड दिया रहेगा, उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स है, सपोज H2SO4 दिया तो उसमें हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, वो सब अपन को डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है बेटा? वो सब ढूंढेंगे। अभी के लिए ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है वो समझो आप। ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इन अ कंपाउंड। यस सर। अभी ये सोडियम क्लोराइड का तो बहुत इजी है समझने के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, बिकॉज सोडियम लूज करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, है ना? बट हाउ टू डिटरमाइन फॉर दीज कंपाउंड्स? दीज आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ पे किसी के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है ना बेटा? देखो पहला NH3 है, दूसरा H2O है, तीसरा CH4 है ना? यस सर। Yes, sir. अरे ये अमोनिया है,
ये वाटर है और ये मीथेन है यस सर। Yes, है ना sir. बच्चों? यस सर। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, ना ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, दोनों ने शेयर किया है। ये देखो, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि चार्ज क्या है? तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे, हम दोनों जो एलिमेंट्स बॉन्डेड हैं उनको देखेंगे और उनको परखेंगे, उनको समझेंगे कि इनमें से कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा उसको हम अज्यूम करेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम अज्यूम करेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके ऊपर क्या चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। वाटर का एग्जांपल लो, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, H2 plus O2 is giving me H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्टार्टिंग में 0 रहता है चार्ज उसके ऊपर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे शेयर हुआ है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1। और अगर ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, -2। बच्चों नहीं समझा सर। गर्ल्स समझा एंड महेंद्र, नहीं समझा सर। गाइस समझा? आई कैन नॉट हियर यू। समझा, बट सर कोई तो बोल रहा है नहीं समझा। अच्छा ठीक है, देख बेटा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होता है ना, तब कोई भी एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, तो इसलिए उसके ऊपर चार्ज मतलब एकदम से आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ये चीज कैसे असाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग अजम्पशन करेंगे कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर जो एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको अज्यूम करेंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका अज्यूम करेंगे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, +1। और अगर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -2। समझा बेटा? Yes, sir. यस सर। Oxidation number is the charge present on the element in a compound. Oxidation number is the charge present on the element in a compound. That is what we're trying to say over here. This is the concept of oxidation number. This we are only predicting, we are only assuming beta. Ionic bond mein there is actual transfer of electron, but covalent bond mein there is no charge of electron. ठीक है, but we are assuming over here. ठीक है, that way. ये देखो, okay, so in order to predict this transfer or shift of electrons because of difference in electronegativities, scientists have come up with this concept of oxidation number. ये oxidation number का concept हम लोग ने actually covalent compounds के लिए बनाया था बेटा। तो covalent compounds में किसका oxidation हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो समझने के लिए यहाँ पे इस कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज हो सकता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको हम अज्यूम करेंगे इसने चार्ज ले लिया, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा उसको अज्यूम करेंगे उसने चार्ज दे दिया। चार्ज देने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो NH3 में देखो बेटा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे 3 हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -3। और अगर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1। सिमिलरली मीथेन में देखो, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा -4। ये इसका टेंशन मत लो, इसके ना रूल्स हैं, वो रूल्स जब हम समझेंगे ना बेटा, इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह असाइन करना है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ना, इट इज always assuming there is complete transfer of and that is assigning to atoms in a count, ठीक है। तो कम इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हमारा अजम्पशन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, but in covalent bond actually electrons are not transferring, beta, actually electrons are not transferring. It's a hypothetical assumption which we are making to introduce the concept of oxidation number. So how is oxidation number defined now? ये देखो, if all the electrons belong to the more electronegative atom, ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग ऑक्सीडेशन हैं। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, देयर आर सर्टेन रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, ठीक है। अभी व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? It is the charge, it is referred to as oxidation state. Hold on. It is just for the purpose of understanding कि हम लोग ये बोल रहे हैं। It is defined as the charge or the apparent charge। लिख रहे हो आप लोग? ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिखो। Oxidation number is defined as the charge or the apparent charge, guys लिखा? Yes, sir. I cannot hear you guys. It Yes, is sir. defined. It is Yes, defined. sir. It is defined as the charge or the apparent charge that is present on a atom or ion that is present on a atom or ion within a compound that is present on an atom or ion within a compound if all the electrons in the compound belonged to, if all the electrons in a compound belonged to the more electronegative atom. लिखा? इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद क्या बोला सर आपने? Atom.
और एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही मतलब है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन रिपीट करूं? ऑक्सीडेशन हाँ। नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और आयन within a compound that would be present if all the electrons belong to the more electronegative atom in the compound. Then beta, Yes, sir. यस सर। so now let us write down the rules for assigning oxidation number. अभी आप लोग सिर्फ रूल्स लिखो, मैं इनको समझाऊंगा बाद में, पहले सारे रूल्स लिख लो। The oxidation number of atoms of elements in their elementary state and allotropic form or natural state is always zero. लिख लिया रूल नंबर 1? यस सर। रूल नंबर 2 लिखो। The sum of oxidation number of all atoms is zero in neutral compounds. मैं आपको एक एक रूल एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अभी पहले सिर्फ रूल्स लिख के ले लो बेटा। मोस्टली मैं आपको रूल्स बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आई एम डाउन विद अ बिट कोल्ड टुडे। थोड़ा बदन दर्द भी है, इसलिए मैं लैपटॉप पे लिया, वरना मैं इसको बोर्ड पे लेने वाला था लेक्चर। गाइस, बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कैसे वीडियो के थ्रू? Board पे। वीडियो। है वीडियो? ओके, सर बोर्ड पे। अच्छा बोर्ड पे। सर फर्स्ट रूल एक बार दिखाना। I guess Utkarsa, you have written all these rules, so you don't have to write it again. यस सर। हो गया बेटा फर्स्ट रूल? यस सर। सेकेंड रूल देखो, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज जीरो इन न्यूट्रल कंपाउंड्स। मैं समझाऊंगा। सेकेंड हो गया? Yes, sir. यस सर। थर्ड लिखो, इन केस ऑफ द आयंस दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ वन एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज द चार्ज ऑफ द आयन। ये लिख लो बेटा, इनको सबको समझाया जाएगा, आप फिक्र ना करें।
Done? Yes, sir. Yes. ये लिखो फोर्थ रूल. All alkali metals have oxidation number of +1 and all alkaline earth metals have oxidation number of +2. और उसमें alkali metals और alkaline earth metals का ये नेम भी लिख लेना, ये वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. Done? Done बच्चों? Done, sir. अच्छा. Fifth rule लिखो. The oxidation number of oxygen is -2 in most of its compound except in two cases. Two cases मैं आपको बताऊंगा जब explain करूंगा. Done? Yes, sir. Yes, sir. These are the two cases, peroxides and superoxides. बताऊंगा मैं. And one more is fluoride. जब मैं बताऊंगा तब. ये लिख लो. Hydrogen has +1 oxidation number when it combines with non-metals. Next rule. Done, sir. Fluorine has an oxidation number of -1 in all its compounds. Fluorine is the most electronegative element. Next rule. Done, sir. ये देख लो एक. ठीक है. ये रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा. अभी स्टॉप रोटेशन का थोड़ा सा देख लो. ये देखो बेटा, Cu2O, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, वरना चलो छोड़ो. ठीक है, आई विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली. मैं आपको पहले सारे रूल समझाऊंगा, कैसे असाइन करना है वो समझाऊंगा, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर. उसके बाद विल डू स्टॉक नोटेशन, एंड उसके बाद वी विल क्या बोलते हैं, गो अहेड विद द चैप्टर. ओके बेटा.
आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको रिडॉक्स के बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। समझ आया सर। यस सर समझा।